Welcome back at Akal Sai Education Center. So due to the pandemic, we were unable to continue the classes. Now we have done a home setup. Now starting with present continuous tense. Firstly, we will discuss the rules. सब तो पहले अपने को statement आंदी है कि ਆਪਾਂ लाना किथा है tense. Is MR ਦੇ ਨਾਲ first form of the verb plus ing. ਜਿੱਥੇ ing ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ first form ਲੱਗ ਗਈ verb ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ tense ਹੈ present continuous tense. Negative ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ I ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ am. I am singing, I am eating. ਤਾਂ ਉੱਥੇ I ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ am. is MR ਚੋ ਤੇ eating EAT ing ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ. eat verb ਦੀ first form. Negative ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ I am not eating. ਹੁਣ ਦੇਖੋ is MR ਲੱਗੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ first form of the verb plus not. ਹੁਣ ਇੱਥੇ negative ਦੇ ਵਿੱਚ major effect ਕੀ ਹੈ not plus ing. Example ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we are singing. ठीक है we you they ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ are. जब प्लूरल फॉर्म आ गई आई की है एक सिंगुलर ते वी यू दे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आर लगेगा इंटेरोगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क इज एम आर तो स्टार्टिंग होगी उस तो बाद सब्जेक्ट सेकंड नंबर ਤੇ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਈਐਨਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ इज ही सिंगिंग ठीक है तो इज ही बाद आ गया सब्जेक्ट सिंगिंग सिंग sang sung तीन फॉर्म वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है sing पीछे लग गया ing नाउ वी विल स्टार्ट विद 3 डिफरेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦ ਵਰਬ ਦੇ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਰਿਮੂਵ ਈ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ing ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ come ਕਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ing ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ing ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਰਡ ਕਮਿੰਗ coming ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ie ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ie ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ing ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਈ DIE ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ IE ਤਾਂ IE ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ y ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ y प्लस ing ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਈਂਗ ਤਾਂ ਡਾਈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਡਾਈਂਗ ie ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ing ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਸੀ ਥਰਡ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਵਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ing ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ w r ਤੇ y ਇਹ 3 ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ n ਹੈ ਤਾਂ n ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਰਨ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ n ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ u ਤਾਂ u ਕੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵੋਵਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਰਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੱਸ ing ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਭੱਜਣਾ ਰਨਿੰਗ ਵਰਡ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵੋਵਲ ਤਾਂ ਜੇ ਵੋਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੀ ਤੇ n ਦੋਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ w r ਤੇ y ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ u ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ PUT ਪੁੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਪਲੱਸ ing ਦਾ ਕੀਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਟਿੰਗ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਨਾਓ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਸਟਿਲ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸਕੂਲ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਓ ਹੁਣੇ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸਕੂਲ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਟੀਚ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵਰਬ ਟੀਚ ਟੌਟ ਟੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ing ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਟੀਚ ਪਲੱਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ing ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼
वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म तो मतलब प्रेजेंट टेंस, जब पिछे लग गया ING तो यह किहड़ा टेंस हो गया कंटीन्यूअस टेंस। तो हुण ये आपां जब ये वर्ड्स आउणगे तो उत्थे यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगेगा। नैक्सट आपां एग्जांपल लैंदे आ एक्शन अकरिंग इन द नीयर फ्यूचर, मतलब वो समा जद किरिया हुणे होण लगी है, हुणे थोड़े समय दे विच होण लगी है। द स्कूल्स आर ओपनिंग नैक्सट मंथ, हुण तुहानूं पता ही है सारे किते स्कूल्स बंद ने ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हुण द स्कूल्स आर ओपनिंग नैक्सट मंथ, हुण एक क्यासा लाई जा रही है कि ये जिहड़ा समा हजे आएगा, किहड़ा आएगा नैक्सट मंथ, अगले महीने आएगा। द स्कूल्स आर, सब तो पहले अपने कोल आर लग गया, ओपनिंग ठीक है, तो पिछे लग गया ING, तो हुण नैक्सट मंथ मतलब आने वाले समय दे विच हुणे जे। तो इत्थे जिहड़ा हैगा स्कूल्स आर ओपनिंग नैक्सट मंथ, मतलब स्कूल जिहड़े ने अगले महीने खुलणगे। तो ये एग्जांपल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दी। नैक्सट एग्जांपल टू शो टैंपररी सिचुएशन, कोई टैंपररी सिचुएशन कि हुणे कोई क्रिया हो रही है उन्होंने दर्शाने लई भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एग्जांपल द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, द पोस्टमैन सब तो पहला इज आ गया, स्टैंड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, स्टैंड स्टूड स्टूड प्लस पिछे की लग गया ING, तो हुण एक ही बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एग्जांपल की कहंदी है द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, जिहड़ा पोस्टमैन है डाकिया वो हजे गेट ते खड़ा है, मतलब हुणे दी सिचुएशन जिहड़ी प्रेजेंटली चल रही है। नैक्सट यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हुण आपां उन्हां दी गल करांगे उन्हां गल्लां नूं दर्शाउण लई जो कहण नूं तां स्थाई होण परंतु उन्हां नूं अस्थाई तौर ते प्रगट कीता जावे। हुण देखो एग्जांपल अपने सामने की है, यू विल रिकॉग्नाइज द बिल्डिंग इट इज टचिंग द स्काई। हुण देखो ध्यान नाल गल नूं समझना है, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਸਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋਣ, ਸਥਾਈ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਈ ਹੈ ਉਹ, परंतु उन्होंने अस्थाई तौर पर प्रगट किया जाए। हुण आपां गल करते हैं इमेजिनेटिव, आपां दुबई की गल करते हैं, बुर्ज खलीफा बहुत टॉप से, जब आप जा रहे हैं उत्थे तो की देख रहे हैं, यू विल रिकॉग्नाइज द बिल्डिंग, आप देखेंगे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ने उन्होंने आप देख रहे हैं कि वी विल रिकॉग्नाइज, आपको दिख रही है कि आ बिल्डिंग ये हो सकता बुर्ज खलीफा। इट इज़ टचिंग द स्काई, हुण देखो इत्थे आ रहा है इट इज़ टचिंग ING लग गया पिछे, तो इट इज़ टचिंग द स्काई मतलब कि यह जी बिल्डिंग है ये लग रहा है कि ये आसमान नूं छू रही है, ये इमारत बहुत ही उच्ची है, तो ये जिहड़ा हैगा एक ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इत्थे लग रहा है। नैक्सट अपने विच की है टू एक्सप्रैस अ हैबिट और कस्टम, कोई हैबिट अपनी एक आदत है जिहड़ी पई हुई है, कोई कस्टम कोई रीति रिवाज जिहड़ा आपां कर रहे हैं उहनूं दर्शाउण दे लई ये दस रहा है। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, हुण देखो इत्थे की है ही इज़ वर्किंग, ING पिछे लग गया इज़, ठीक है, सब तो पहले आपां नूं दिख रहा है कि वर्ब लग गया वर्क, वर्कड वर्कड, तो वर्क की वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो हुण जिथे अपने कोल आ तिन्नां दा सुमेल आ गया कि वर्ब लग रहा है इज MR, ठीक है, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज कि अजकल के दिनों के वो बहुत सख्त मेहनत कर रहा है, बहुत सख्त काम कर रहा है, बहुत वधिया काम कर रहा है। तो इत्थे जिहड़ा हैगा अपने कोल की लग गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सो दीज वर ऑल द डिफरेंट एग्जांपल्स एंड यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हुण देखो सब तो पहला आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बारे जानकारी लैंदे आ कि ये हुंदा की है। इस तो पता लगता है, पता चलता है कि काम खत्म हो गया है, मतलब जिहड़ा काम है वो अजे हुणे खत्म होके हटिया है, पर उसनूं खत्म होए बहुत ही देर नहीं हुई है, मतलब काम जिहड़ा हैगा क्रिया हुणे समाप्त होके हटी है पर हजे उसनूं ज़्यादा देर नहीं हुई, मतलब हजे काम हुणे पूरा जस्ट होके ही हटिया प्रेजेंट। तो हुण स्टेटमेंट आपां तीन तरह की गल करते हैं। पहली स्टेटमेंट जिहड़ी हुंदी है पॉजिटिव, हाँ पक्षी, दूजी हुंदी है नैगेटिव जिहदे विच आपां नावाचक गल करते हैं, तीजी हुंदी है इंटैरोगेटिव जिहदे विच आपां सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, ठीक है। तो हुण इहदे विच देखो देखण वाली गल की है, स्टेटमेंट पहली की है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हुण जब सब तो पहला रूल की कहता है हैज़ या हैव दोनों च एक चीज़ लगेगी, तो जब थर्ड फॉर्म वर्ब की क्रिया की तीजी फॉर्म लग गई तो उतों पहचान होएगी कि यह किहड़ा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हुण देखो इहदे विच आपां एग्जांपल्स दे नाल इत्थे गल करदे हां, जद भी आए यू वी दे आएगा तो उन्हां दे नाल की लगेगा, हैव लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इस चीज़ नूं आपां अपने मन दे विच वसा लईए। एग्जांपल अपने सामने है, मिस्टर लखविंदर सिंह की गल कर रहे हैं, पर मिस्टर लखविंदर सिंह हैज़ डन हिज वर्क। तो हुण जिहड़े लखविंदर सिंह जी ने अपने सामने बैठे ने, तो इन्होंने की अपना होमवर्क या जो भी कोई काम इन्होंने असीं दिता सीगा, सौंपिया सी, तो इन्होंने वो कंप्लीट कर लिया। तो इत्थे देखो एग्जाम्पल दे विच आपां नूं पहचान पता किदां चलदा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब तो पहला जिस बारे आपां गल कर रहे हैं लखविंदर सिंह, जिहड़े मेन करता ने जिन्हां दे आले दुआले सेंटेंस घूम रहे हैं, लखविंदर सिंह हैज़, सब तो पहली चीज़ किहड़ी अपने कोल हैज़ या हैव दोनों चो एक आना जरूरी है। लखविंदर सिंह हैज़ डन, तो हुण देखो वर्ब की जिहड़ी क्रिया है वो क्रिया की वर्ब की 1 2 3 तीन फॉर्म्स ने, तो डू डिड डन। वर्ब की जब तीजी फॉर्म लग गई तो ये आ गया डन,
लखविंदर सिंह हैज़ डन हिज वर्क। तो लखविंदर सिंह जी ने अपना जिहड़ा काम सीगा वो पूरा कर लिया। ठीक है, तो हुण इस सेंटेंस दे विच आपां नूं क्लीयर हो गया कि जद हैज़ हैव ते वर्ब दी तीजी फॉर्म लगी तो आपां इह किहड़ा टेंस कहना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हुण एग्जाम्पल क्लीयर है कि आई आ जाए यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, वी हैव डन आर वर्क। तो हुण अलग-अलग दे हैव डन देयर वर्क। तो इदां आपां अलग-अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई यू वी ते दे नाल हमेशा की लाना, हैव, हैज़ नहीं लाना। तो नैक्सट अपने कोल देखो इत्थे एग्जाम्पल दे विच नाल ही क्लीयर है, जब ही शी ते इट आएगा तो उन्हां दे नाल की लगेगा, हैज़, ही हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, तो नैक्सट आपां नैगेटिव की गल करते हैं। नैगेटिव दे विच की है, हैज़ या हैव लगेगा, उस तो बाद नॉट लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आप पहला भी गल कर चुके हैं, सेम एग्जाम्पल आएगी, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार, कि मैं अपना काम हजे तक पूरा नहीं किया। तो एग्जाम्पल में आप ध्यान नाल समझ लीए। सब तो पहला आई की है सब्जैक्ट, सब्जैक्ट मैं, उस तो बाद आ गया हैज़ या हैव लगेगा, तो ये हैव आ गया। हैव नॉट, तो हम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉट दर्शा रहा है कि नैगेटिव सेंटेंस। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ईडी लग गया पिछे, तो फिनिश्ड जिहड़ा हैगा ये हैगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हुण हैगा आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार, कि मैं अपना काम जिहड़ा हैगा हजे तक पूरा नहीं किया, फिनिश नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, सो फार हजे तक नहीं किया। राइट, तो हुण देखो इत्थे अपना रूल पहला भी मैं तुहानूं समझा चुकिया, जब भी ही शी ते इट लगेगा उहदे नाल लगेगा हैज़। तो हुण आ गया ही आ जाए। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा आएगा, मैं ऊपर तुहानूं दस्सिया आई यू वी दे नाल लगेगा हैव। तो आई जब आ गया तो आई दे नाल की लगे, आई हैव, I have not finished my work। जे आप थले वाले लाने, he has not finished his work। ठीक है, तो इदां आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। नैक्सट आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दे विच की लगेगा, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन मार्क आ गया वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हुण ये जिहड़ा सेंटेंस है हमेशा याद रखना है, जिहड़ा हैगा हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ तो स्टार्ट होएगा। ठीक है, हैव वी नॉट लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। हुण देखो पिछे क्वेश्चन मार्क आ गया, जब क्वेश्चन मार्क पिछे आ गया तो ये तो ये क्लीयर हो जाएगा कि ये केड़ा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, हैव वी नॉट लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, सब तो पहला की आ गया, हैज़ या हैव। जब हैज़ या हैव आ गया तो उतो क्लीयर हो जाएगा कि हैज़ या हैव आ गया तो ये केड़ा टेंस होता है, हैव वी नॉट लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो हुण देखो लिव्ड दे पिछे की लग गया, ईडी, तो ये किहड़ा आ गया थर्ड फॉर्म। तो हैव वी नॉट लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर, कि सानू इत्थे रहिंदे 10 साल नहीं होए इस घर दे विच। सो ये जिहड़े हैगे ने बेसिक्स रूल्स ने फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब तो पहला यूज अपने कोल आ रहा है जिथे वरते जा रहा है इन पास्ट एक्सपीरियंस, वो एक्शन जिहड़ा हुणे हजे होके हटिया। एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ कोविड-19 रिसेंटली। हुण तुहाडे सामने सारिਆਂ ਦੇ सामने है सिचुएशन कि कोविड-19 ਦਾ दौर चल रहा है और बहुत ही मौतां ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, हैज़ या हैव डाइड, डाइड। तो इत्थे जिहड़ी हैगी वर्ब दी थर्ड फॉर्म लग रही है। तो मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ कोविड-19 रिसेंटली। तो हुणे बहुत ही मौतां होईयां ने कोविड-19 दे नाल। तो हुण देखो इत्थों आपां नूं पता किवें चलिया कि इस सेंटेंस दे विच की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सब तो पहला लग्या हैव ते डाइड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिहड़ी आपां नूं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिहड़ी लग रही है, उस तो आपां नूं पता चल रहा है कि यह किहड़ा हैगा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट, दिस सेंटेंस एंड्स विद बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स। जब ये अखर सेंटेंस दे विच आणगे तां आपां की कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होएगा। किद्दां होएगा, एग्जाम्पल सामने है, ही हैज़ सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस। तो उसने ताज नूं कितनी बार देखा, 2 बार देखा। तो ही हैज़, सब तो पहला अपने कोल की लग रहा है, हैज़। सब तो पहला सी, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी, सॉ, सीन। तो इत्थे वर्ब दी कितनी फॉर्म है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ही हैज़ सीन। इत्थों पता चल गया कि केड़ा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ सीन द ताज, ताज महल की गल कर रहे हैं आपां, एट आगरा ट्वाइस। तो हुण इत्थे जब इदां दे अखर आणगे पिछे, तो ये जब अखर आणगे ट्वाइस 2 बार देखिया, तो इत्थे भी यह केड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होएगा। नेक्स्ट, एक्शन विच हैज़ कंप्लीटेड सम टाइम्स बिफोर एंड द सेंटेंस एंड्स विद। हुण देखो किहड़े जिहड़े वर्ड हैं जब आन तो एक्शन कुछ देर पहला हो चुका है, ऑलरेडी, सो फार, एज येट,
just now, till now, recently, presently। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਵਾਲੇ words ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ action ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ। So example of this is my brother has returned from Bahrain recently। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ example ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦ word use ਹੋ ਰਿਹਾ recently, presently, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ recently word ਜਦ use ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ present perfect tense ਆਏਗਾ। my brother has returned, ed ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, third form of the verb, ठीक है। my brother has returned, ਹੁਣੇ ਆਇਆ from Bahrain recently, मतलब ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, present perfect tense। so next usage of present perfect tense, action starts up earlier and is going till now। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I have known her from past 9 years, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ I have, has have ਚ ਪਹਿਲਾਂ have ਆ ਗਿਆ, know, knew, known, third form of the verb। I have known her, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ from past 9 years। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ, I have not seen him since last Monday। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, I have not, नहीं देखा, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। I have not seen, see, saw, seen, ਤਾਂ ਇਹ verb ਦੀ third form आ जाएगी। फिर I have not seen him since last Monday, मैं last Monday ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਏਗੀ present perfect tense ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ activity which has been completed in earlier past but symptoms are seen in the present। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈਜ਼ ਈਟਨ ਆਲ ਦ ਬਨਾਨਾਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਹੈਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਈਟਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈਜ਼ ਈਟਨ ਆਲ ਦ ਬਨਾਨਾਸ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਲੇ ਖਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਰ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, देयर आर not any left for you, मतलब कोई भी केला ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਨਾਨਾਸ ਖਾ ਲਏ ਨੇ। So these were all the different uses of present perfect tense। We will start with present perfect continuous tense। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ the work which starts from past time and still continues। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲੱਸ ਬੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੀਨ, ਬੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ING। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, these boys have been making a noise for an hour। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈ, these boys, ਇਹ ਲੜਕੇ, ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, have, have ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ been, ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ has ਜਾਂ have ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ been, been ਲੱਗ ਗਿਆ। making, make, make ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ING, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ING, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ making। ਤਾਂ these boys have been making a noise for an hour। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਪਲੱਸ ਨॉट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨॉट ਪਲੱਸ ਬੀਨ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ING। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨॉट ਬੀਨ ਰਿਹਰਸਲਿੰਗ ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਚੋਂ ਹੈਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨॉट, ਨॉट ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨॉट ਬੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀਨ। ਰਿਹਰਸਲਿੰਗ, ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ING, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
कोई डांस कंपटीशन है, डांस की रिहर्सल करनी कि दोबारा प्रैक्टिस करनी, राइट। तो ये वर्ड हैगा रिहर्सल। तो शी हैज़ नॉट लग गया, देखो इत्थे इंपॉर्टेंट, नॉट बीन रिहर्सलिंग पिछे लग गया ING, ठीक है। सिंस लास्ट मंडे मतलब पिछले हफ्ते के पिछले मंडे तो और रिहर्सल नहीं कर रही। नैक्सट सेंटेंस अपने को इंटैरोगेटिव आ गया जिहदे आएगा हैज़ या हैव, उस तो बाद सब्जैक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, उस तो बाद लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क हमेशा आएगा इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस दे विच। तो एग्जांपल अपने सामने, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। हुण सब तो पहला देखो स्टार्टिंग दे विच आपां ने हैज़ या हैव तो हैव आ गया, ठीक है जी। उस तो बाद हैव दे प्लूरल, काफ़ी बंदे ने, हैव दे बीन, ठीक है जी। आ देखो रूल के मुताबिक हैव दे बीन, ठीक है जी। हैव दे बीन लर्निंग, ING लग गया पिछे, लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, हैव दे बीन। हुण देखो ਜਿਹੜਾ सब्जैक्ट है वो सैकेंड नंबर पर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला भी आप डिस्कस कर चुके हैं, हैज़ या हैव पहला आएगा, हैव तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे, उस तो बाद सब्जैक्ट आया, तो हैव दे, उस तो बाद नॉट बीन या बीन, ठीक है ना। तो हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश की वो 2 साल तो पिछले इंग्लिश सीख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटैरोगेटिव सेंटेंस बन गया। सो दीज वर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Now we will start with the usage of since and for in present perfect continuous tense। सब तो पहला ਆਪਾਂ since ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। since ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਅ ਟਾਈਮ ਅ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल I have been studying in Canada since 2012, मतलब 2012 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ since 2012 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ मतलब सिंस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2012 ਸਨ ਹੈ, 2012 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਸ 8 o'clock। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਿੰਸ 8 o'clock, ਕਿ ਸਿੰਸ 8 o'clock ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, मतलब उस समय क्रिया शुरू होगी और हुण तक वो क्रिया जिहड़ी हैगी चल रही है, लगातार चल रही है, ठीक है जी। सिंस मंडे दे विच आपां बना सकते हैं आई हैव बीन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे, कि सिंस मंडे सोमवार तो मैं प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया तो हजे तक मैं वो प्रोजेक्ट बना रहा, कंप्लीट नहीं होया, मतलब उदों मंडे तो मैं सिंस मंडे उदों तो मैं वो क्रिया शुरू की और हजे तक वो क्रिया चल रही है, हजे कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। ये तो पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे विच आपां किदां इहदा सिंस दा यूजेज करना है। सिंस फैब्रुअरी तो हुण इहदे विच आपां कह सकते हैं कि आई हैव बीन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस फैब्रुअरी, मतलब कि बहुत वड्डी तुहाडी असाइनमेंट है कोई, ठीक है, तुहाडा कोई जिहड़ा हैगा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है 5 महीने 6 महीने का, तुसीं थीसिस सबमिट करना है, ठीक है। तो उहदे विच आपां यूज़ कर सकते हैं। उस तो बाद आपां फॉर दी गल करते हैं, कोई पीरियड ऑफ टाइम, कोई नंबर, कोई टाइम वर्ड, ठीक है ना। हुण देखो एग्जाम्पल देखो इत्थे आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन फॉर 6 years। हुण इहदे विच देखो जिहड़ा फॉर लग रहा है ये फॉर 6 years, मतलब कि ये एक नंबर क्लीयर कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि पिछले 6 सालों तो आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन फॉर 6 years। 6 साल कद तो शुरू हुए, किहड़े साल तो शुरू हुए, इट इज़ नॉट क्लीयर, ठीक है। हुण फॉर दे विच सिर्फ टाइम पीरियड दस रहा है, फॉर 10 minutes आई हैव बीन नॉकिंग द डोर फॉर 10 minutes, कि पिछले 10 मिनट हो गए मैनू दरवाजे नू खटखटांदे, किसी ने कुंडा नहीं खोलिया, ठीक है जी। तो फॉर 8 hours, ठीक है, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 8 hours, कि 8 घंटे हो गए मैनू गांदे, हारमोनीयम बजाते, कोई भी चीज़ करते हैं, राइट। तो ये आप स्पेसीफाई नहीं कर पा रहे कि कदों तो हो गए 8 घंटे, अज सवेर तो होए, ठीक है, या कद तो किन्ने बजे, 2 बजे मैं स्टार्ट किया, किन्ने बजे, टाइम इज़ नॉट क्लीयर। फॉर दे विच फॉर 5 days, ठीक है जी। आई हैव बीन इन अमृतसर फॉर 5 days, मतलब मैं 5 दिनों तो अमृतसर दे विच स्टे कर रहा, उत्थे गया होया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो फॉर 2 centuries आप कोई भी गल कर सकते हैं, इस तरह अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के आप सिंस ते फॉर नू क्लीयर कर सकते हैं। तो सिंस दे विच जिहड़ा हैगा टाइम पीरियड इज़ वेरी क्लीयर, ठीक है ना। इत्थे आप देखो क्या आई हैव बीन स्टडिंग इन कैनेडा सिंस 2012, सिंस दे विच श्योर है कि 2012 दे विच मैं कैनेडा सीगा और हुण तक मैं कैनेडा दे विच ही हाँ, पर उत्थे जिहड़ा हैगा जब मैं ये गल की आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन फॉर 6 years, ये क्लीयर नहीं है कि मैं स्पेन दे विच कदों गया, मैं 6 साल कदों लाए उत्थे, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लीयर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब तो पहले आप गल करते हैं टू शो सच टाइप ऑफ एक्शन जिस विच सिंस फॉर वाला टाइम दिता होवे। हुण ध्यान नाल देखना किद्दां प्रेजेंट नू दसन वाला कोई वर्ड, जिवें हुण आपां इहदे विच गल करदे हां दिस, दीज, हेयर, नाउ। हुण इहनूं समझ लईए ध्यान नाल, जिस विच सिंस या फॉर वाला टाइम दिता होवे, मतलब आपां गल कर रहे हैं सिंस, उदों तो, ठीक है जी। हुण एग्जाम्पल अपने सामने है, ठीक है जी।
I have been living in this house for 2 years। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ for ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। I have been living, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, have been living ing ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ I have been living in this house for 2 years, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ for ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ for 2 years, ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ for ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ these boys have been working for an hour। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। these boys have been ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੰਡੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, have been working ing ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ these boys have been working for an hour, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ for ਲੱਗ ਰਿਹਾ for an hour, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ since ਤੇ for ਦੀ। since ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ for time ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, for 2 years 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ this, these, here, now। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ these boys, ਆਹ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। this ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, this table, this chair, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ here, now, here ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ since, when ਜਾਂ for how long ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, since when have you been waiting for me, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ since when, जब since when आ गया तो अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। since when have you been waiting for me, तो कितना समा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा इंतजार कर दिया। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਇਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ since when have you been waiting for me, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ have been waiting ing ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, कि किन्ने साल हो गए, किन्नी देर हो गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਫॉर ਹਾਊ ਲੌਂਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫॉर ਹਾਊ ਲੌਂਗ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਫॉर ਹਾਊ ਲੌਂਗ। हैव आ गया, बीन आ गया, लिविंग ਚ ਪਿੱਛੇ ing ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ हैगा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, कितनी देर होगी, कितने साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। नेक्स्ट यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू शो सच टाइप ऑफ एक्शन जो पास्ट ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। एग्जाम्पल अपने सामने, they have been walking in the rain so they are shivering, ठीक है। ਹੁਣ देखो सब तो पहला पता किवें चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो they have सब तो पहला have आ गया, been लग गया, walking ing लग गया पीछे, तो इस तो क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। they have been walking in the rain कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, they are shivering, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਬਾ ਛਿੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ ड्यू टू वेदर, ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, I have been white washing my house since morning so I am feeling tired, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ have been ਆ ਗਿਆ, washing ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ing ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। I have been white washing my house since morning, ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਫੈਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो so I am feeling tired, इस करके कि मैं हूँ टायर्ड फील कर रहा है, थक्या हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है जी। So these are all the different uses of present perfect continuous tense।